टीआरएस एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और साबिक वजीर ई दयाकर राव ने जेल में महरूस आरजीटीवी के सहाफी से मुलाकात की। आरजीटीवी के रिपोर्टर राजकुमार को कांग्रेस हुकूमत से सवाल करने वाले वीडियोस बनाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया है। बीआरएस के एमएलए पल्ला राजेश्वर रेड्डी और साबिक वजीर ई दयाकर राव ने जंगांव सब जेल में महरूस सहाफी राजकुमार से मुलाकात की और उनसे तफसीलात हासिल करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। ఒక ఎస్టీ పిల్లగాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఆర్జీటీవీ అని పెట్టుకున్నారు. అది పబ్లిక్ వాయిస్, ప్రజల దగ్గర తీసుకున్న వాయిస్ ను ఆ టీవీలో సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకే సపోర్ట్ చేశారు. ఆ ఫ్యామిలీ అంతా, ఆ ఫ్యామిలీ ఈరోజు విరక్తి చెంది ఒక రైతు కుటుంబంలో పుట్టి వాళ్ళు విరక్తి చెంది రేవంత్ రెడ్డి రైతులకు అన్యాయం చేస్తాడు, ప్రజలకు అన్యాయం చేస్తాడని ప్రజల దగ్గర తీసుకుని వాయిస్, వాళ్ళ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే కావచ్చు కానీ ప్రజల వాయిస్ ను వినిపిస్తున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలన్నీ కూడా చేస్తలేరు అని ప్రజల దగ్గర తీసుకున్న వాయిస్ ను వాళ్ళ టీవీ ద్వారా సోషల్ మీడియా ద్వారా వినిపిస్తుంటే ఒక ఎస్టీ వ్యక్తిని రాత్రి 11 గంటలకు పట్టుకొచ్చి 4:30 దాకా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి ఇప్పుడు సరెండర్ చేశారు. ఇది అన్యాయం, అక్రమం. పాలకుర్తి నియోజకవర్గంలో ఇప్పటికే 3 మీద అక్రమ కేసులు పెట్టడం, వాళ్ళు చేయబట్టి చనిపోవటం, ఎస్టీ ఒక యువకుడు కూడా చనిపోయాడు, సీనియర్ యువకుడు. తొర్రూరులో ఒకరిని విపరీతంగా పోలీస్ స్టేషన్ లో సోషల్ మీడియాలో పెట్టి కొట్టారు. అంటే ఇంత బెదిరింపులు జరుగుతాయి. ఇదంతా రేవంత్ రెడ్డి ఇది పెద్ద నాటకం ఆడతాడు. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి వార్నింగ్ ఇస్తున్నా, అతన్ని వదిలిపెట్టాలి. ఇప్పుడు గతంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ మీద కూడా వ్యతిరేకంగా చాలా మంది టీవీలు సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు. మేము ఎక్కడ కూడా కేసులు పెట్టి లోపల పెట్టింది ఇంతవరకు లేదు. ఒక్కటి చూపెట్టు. ఇప్పుడు అన్యాయంగా ఒక ఎస్టీ పిల్లవాడు వ్యవసాయం చేసుకుని కూలి చేసుకునే కుటుంబం అది. అసుంటి వ్యక్తిని తీసుకుపోయి రాత్రి 11 తీసుకుపోయి 4:30కు జంగం కోర్టులో సరెండర్ చేసి అతన్ని ఇలా జైలుకు పంపించి ఇది అన్యాయం, అక్రమం. దయచేసి నేను ప్రభుత్వాన్ని విమర్శించాలని కాదు, మీరు చేసే అరాచకాలు మీరు ప్రజల దృష్టికి తీసుకొస్తాను. నేను అసలు వ్యక్తిని మీరు చెప్పేటి విని ప్రభుత్వం నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి తప్ప ప్రజలు చెప్పే వాయిస్ ను అది తప్పుగా భావించి అతని మీద కేసు పెట్టి చేయడం అక్రమం. ఇమ్మీడియట్లీ కేసు విత్డ్రా చేసుకోవాలి, ఇమ్మీడియట్లీ విడుదల చేయాలనేదే నేను డిమాండ్ చేస్తున్నా. ఇది రాష్ట్ర లెవెల్లో, జిల్లా లెవెల్లో కూడా ఉద్యమం లేబడతామని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఆ కుటుంబాన్ని అన్నిటిలో మేము ఆదుకుంటాం. कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत एक शख्स को लेटर ऑफ क्रेडिट फराहम किया। हैदराबाद के इलाके बहादुरपुरा के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन को बेहतर इलाज के लिए कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रियाजुल हसन आफंदी ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के स्कीम के तहत 1 लाख रुपये का लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किया। संक्रांति त्यौहार के लिए लोगों के अपने आबाई मकामात को रवाना होने की वजह से महबूबनगर जिले में कौमी शाहराह 44 पर भारी ट्रैफिक जैम देखा जा रहा है। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद में मुकीम अफराद आबाई मकामात को रवाना हो रहे हैं। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन के अलावा कौमी शाहराहों पर हजारों गाड़ियां नजर आ रही हैं। भीड़ में मजीद इजाफे की तवक्को भी की जा रही है। ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अमले को तैनात किया गया है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने छावनी डिवीजन का दौरा करते हुए सीवरेज के मसले को हल करने की हिदायत जारी की। सीवरेज के मसले की यकसोई के लिए मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला को बाक़ी जहां आरा के एक रिहायशी का फोन कॉल मौसूल हुआ था, जिसके बाद एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने बाक़ी जहां आरा पहुंचकर सूरत हाल का मुआयना किया और ओहदेदारों को फौरी कार्रवाई करने और इस मसले को हल करने की हिदायत जारी की। इस मौके पर उनके हमरा छावनी डिवीजन के कॉरपोरेटर सलाम शाहिद के अलावा महकमा आब रसानी के ओहदेदार, मुकामी मकीन, पार्टी के सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान मौजूद थे।
संक्रांति त्यौहार के मौके पर पंतगी टोल प्लाजा पर लोगों का जबरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। संक्रांति त्यौहार मनाने के लिए हैदराबाद के लोग अपने अपने आबाई मुकामात का रुख कर रहे हैं। हैदराबाद विजयवाड़ा शाहरा पर वाक़ पंतगी टोल प्लाजा पर गाड़ियों की आमदोरफ्त में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। कई किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी हुई हैं। फास्टैग स्कैनिंग में ताख़ीर होने की वजह से गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। बताया गया है कि 12 टोल बूथ के जरिए गाड़ियां आंध्र प्रदेश की तरफ भेजी जा रही हैं। ओहदेदारों ने बताया कि पंतगी टोल प्लाजा पर फी घंटा 900 गाड़ियां आंध्र प्रदेश की सिमत जा रही हैं। गाड़ियों को मुनज़्ज़म अंदाज में रवाना करने के लिए पुलिस की जानिब से इंतजाम किए जा रहे हैं। రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలో పంతంగి టోల్ గేట్ దగ్గర మనకు పంతంగి దగ్గర టోల్ గేట్ ఉన్నది. ఈ సంక్రాంతి సందర్భంగా ఆంధ్ర వెళ్ళే ప్రజలందరూ కూడా ఇది ఇంపార్టెంట్ జంక్షన్. ఓఆర్ఆర్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు, సిటీ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు మొత్తం కూడా అన్ని వెహికల్స్ కూడా ఇక పంతంగి టోల్ గేట్ నుంచి పాస్ కావాల్సిందే, ఆల్టర్నేట్ రూట్ లేదు. సో గతంలో కొద్దిగా సర్వర్ డౌన్ ఉండడం వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ కొద్దిగా జామ్ అయినట్టుగా మాకు ఇన్పుట్ ఉంది. దాని వల్ల మేము సాఫ్ట్వేర్ ను అప్డేట్ చేయడం జరిగింది, సర్వర్ డౌన్ కాకుండా చూడడం జరిగింది. దాంతో పాటు బూస్టర్స్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. బూస్టర్ ఉంటే ఏంటంటే స్పీడ్ గా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే క్లియర్ అవుతుంది అది టోల్, కాబట్టి ఆ బూస్టర్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దాంతో పాటు హ్యాండ్ గన్స్ కూడా ఉన్నాయి. దాంతో పాటు కెమెరాలు కూడా ఏర్పాటు చేసినాము. ఆ కెమెరా ద్వారా ఒకవేళ జామ్ ఏమైనా అయితే ఫీ దాంట్లో అమౌంట్ లేకపోయినా కెమెరా ద్వారా క్యాప్చర్ చేసి మేము తర్వాత అప్లోడ్ చేసి టోల్ గేట్ సిబ్బందితో మాట్లాడి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి 10 వేస్ మనం అక్కడ పంపిస్తున్నాము విజయవాడ సైడ్. అవసరం అంటే ఇంకా 2 కూడా ఓపెన్ చేసి పంపిస్తాం. అవసరం అనుకుంటే లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్నటువంటి ఈ ఆటోలు వెళ్లే దారిని కూడా వీళ్లకు కేటాయించడం జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ చాలా స్మూత్ గా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి జస్ట్ 1 మినిట్ లోపే విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లోనే వెహికల్స్ అన్ని కూడా పాస్ అవుతున్నాయి. ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా మా కమిషనర్ గారు, రాచకొండ కమిషనర్ గారి ఆదేశాలతో ఇక్కడ పర్సనల్ గా మానిటర్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 2 ఏసీపీలు కూడా, లా అండ్ ఆర్డర్ ఏసీపీ, మా ట్రాఫిక్ ఏసీపీ ఇక్కడే ఉంటారు. మేము కూడా ఇక్కడే ఉంటాము. మొత్తం ట్రాఫిక్ మొత్తం క్లియర్ అయ్యే వరకు కూడా ఇక్కడే ఉండి మేము చూసుకుంటామని తెలియజేస్తున్నాం. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि रवा माह के आखिर तक नए उस्मानिया अस्पताल की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ने नए उस्मानिया अस्पताल की तामीर के सिलसिले में हफ्ते को एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया। इजलास चीफ मिनिस्टर की रिहाइश गाह पर हुआ, जहां उन्होंने ओहदेदारों से मंसूबे की तफसीलात पर तबादला ख्याल किया और तजवीज़ करदा मुकाम की तफसीलात का जायजा लेते हुए हिदायत जारी की कि पुलिस महकमे के ज़ेर इख्तियार उस ज़मीन को जल्द अज जल्द सेहत व तिब महकमे के हवाले किया जाए। उन्होंने दोनों महकमों के दरमियान ज़मीन की मुंतकली के अमल और दीगर ज़रूरी कार्रवाइयों को फ़ौरन मुकम्मल करने की ताकीद की है। दनियासना ओहदेदारों ने अस्पताल के तामीराती मंसूबे चीफ मिनिस्टर के सामने पेश किए। चीफ मिनिस्टर ने उन मंसूबों में चंद तब्दीलियाँ की हैं और कुछ तजावीज़ात भी पेश की हैं। उन्होंने कहा है कि अस्पताल को जदीद तरीन सहूलियात के साथ अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जाए। रेवंत रेड्डी ने जोर दिया है कि डिज़ाइन में सड़कों, पार्किंग, मुर्दाखाना और दीगर बुनियादी सहूलियात को शामिल किया जाए और मुस्तक़बिल में मुमकिन सड़कों की तोसी या फ्लाई ओवर की तामीर में रुकावट न हो। यदाद्री भुवनागिरी जिले में कांग्रेस NSUI के रहनुमाओं ने BRS पार्टी के दफ्तर पर हमला कर दिया। ज़राए ने बताया कि यदाद्री भुवनागिरी जिले में कांग्रेस NSUI लीडर्स ने पुलिस की मौजूदगी में BRS पार्टी के दफ्तर पर हमला किया। पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। वाज़ेह है कि नामपल्ली में बीजेपी के दफ्तर पर भी हमला करने का वाक़या पेश आ चुका है। नामपल्ली बीजेपी दफ्तर पर हमले के बाद भुवनागिरी जिले में BRS पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। हमले में दफ्तर का फर्नीचर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। बीजेपी और BRS के दफातर पर हमलों के बाद रियासत में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठने लगे हैं और कांग्रेस लीडर्स पर तनकीदें की जा रही हैं। रियासती वजीर पोंगिलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 26 जनवरी से तमाम गरीबों को नए राशन कार्ड्स दिए जाएंगे।
राशन कार्ड्स के हुसूल के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के मुंतज़िर लोगों का इंतज़ार अब खत्म होने जा रहा है। रियासती वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने हफ्ते को कहा है कि 26 जनवरी से तमाम गरीबों को नए राशन कार्ड्स जारी किए जाएंगे। पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कलेक्टर मुजम्मिल खान के हमरा निर्मल में 80 मकानात के हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह अंजाम दिया और घरों के पट्टे मुस्तहिकीन के हवाले किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी से 4 फलाही स्कीमात का आगाज किया जाएगा। उन स्कीमों पर अमल दरामद करते हुए लोगों से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर ज़रूरतमंदों में राशन किट्स तक़सीम किए गए। 13 रजब को हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम विलादत के मौके पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अलावा सरतूख वाक़े दारुशिफा में याकुतपुरा, मौला का छिला, गंगानगर, मुर्तुज़ा नगर, सादत नगर, चूने की भट्टी व दीगर इलाकों के ज़रूरतमंद अफराद में राशन किट्स की तक़सीम अमल में लाई गई। MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, सैयद मुश्ताक अहमद, दबीरपुरा कॉर्पोरेटर अलमदार वाला जाही व इलाके के सुदूर व मोतमदीन के हाथों ज़रूरतमंदों को राशन किट्स दिए गए। फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी ने तेलंगाना में साल 2024 में 13,000 से ज़ायद सांपों को बचाया। हैदराबाद में बचाए गए सांपों में से आधे सांप कोबरा थे। जंगली हयात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म फ्रेंड्स ऑफ स्नेक सोसाइटी 2015 से सांपों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है। पिछली दिहाई के दौरान 75,000 से ज़ायद सांपों को कामयाबी से बचाया और बहाल किया गया है। साल 2024 में FOS ने 13,028 सांपों को बचाया है। तेलंगाना के शहरी और देही इलाकों में एक साल के दौरान 6,186 नाजा, 3,120 पाइटस म्यूकोसा, 1,386 फोलिया पिस्केटर, 422 डेंड्रलापिस ट्रिस्टिस और 112 पाइथन मोलोरस को बचाया गया है। हैदराबाद की STF टीम ने नलगोंडा जिले के चेरुकुपल्ली देवराकोंडा में 1,000 किलो गुड़ और 50 किलो फिटकरी जब्त कर ली। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद की STF टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए नलगोंडा जिले के देवराकोंडा चेरुकुपल्ली का दौरा किया और गुड़ और फिटकरी ले जाने वाली एक कार को रोका। आपको बता दें कि गुड़ और फिटकरी का इस्तेमाल गैर कानूनी शराब बनाने के लिए किया जाता है। टीम ने गाड़ी से 1,000 किलो गुड़, 50 किलो फिटकरी और 10 लीटर गैर कानूनी शराब जब्त की है, जिसकी मालियत 15 लाख रुपये बताई जा रही है। औहदेदारों के मुताबिक कार देवराकोंडा मंडल में पद्मती तांडा की तरफ जा रही थी और रमेश नामी शख्स कार चला रहा था। ये कार्रवाई CI भिक्षा रेड्डी, SI बालराजू और कांस्टेबल यादगिरी ने अंजाम दी है। एक्साइज इन्फोर्समेंट के डायरेक्टर VB कमलासेन रेड्डी और STF टीम लीडर प्रदीप राव ने इस टीम की कोशिशों की भरपूर सताइश की। सिद्दीपेट जिले में कोंडा पोचम्मा सागर झील में गिरकर 5 नौजवान अपनी जान से हाथ धो बैठे। हफ्ते के इख्तिताम पर तफरीह के लिए जाने वाले हैदराबाद के नौजवान हादसे का शिकार हो गए। ज़राए ने बताया कि हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले 7 नौजवान आज सुबह कोंडा पोचम्मा सागर का मुशाहदा करने के लिए गए थे। इस दौरान वो सब डैम के पानी में गिर गए। मुकामी अफराद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, ताहम 5 नौजवान जिनकी शिनाख्त धनुष, लोहित, विनेश्वर, साहिल और जुनैद के तौर पर की गई है, मौके पर ही अपनी जान गंवा बैठे, जबकि दीगर 2 नौजवानों को मुकामी अफराद की मदद से बाहिफाजत बचा लिया गया। इस हादसे के बाद इलाके में गम का माहौल पाया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। नामपल्ली की अदालत ने अदाकार अल्लू अर्जुन को हर इतवार को चिकड़पल्ली पुलिस के रूबरू पेश होने से मुस्तस्ना करार दे दिया और बैरून मुल्क जाने की भी इजाज़त दे दी। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भगदड़ मामले में एक और राहत मिली है। नामपल्ली की अदालत ने उन्हें हर इतवार को
चिकटपल्ली पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए दस्तखत करने की शर्त से इस्तिस्ना करार दे दिया है। आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने अदालत से रुजू होते हुए सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस शर्त से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की थी। अदालत ने हफ्ते को इस मामले की समाअत की और मुस्बित जवाब देते हुए हर इतवार को दस्तखत करने से इस्तिस्ना दे दिया। अदालत की जानिब से अल्लू अर्जुन को बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी दी गई है। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चार मीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने चमकोरा मस्जिद से घासी मियां मस्जिद तक सीसी रोड की तनसीब के जारी कामों का मुआयना किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की हिदायत पर चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फिकार अली ने एक जायजा इजलास मुनक्किद करते हुए चमकोरा मस्जिद से घासी मियां मस्जिद तक सीसी रोड की तनसीब के जारी कामों का मुआयना किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। प्रोजेक्ट का तखमीना लागत 44 लाख रुपये है। एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने बताया कि चार मीनार हल्के में तरक्याती सरगर्मियां जारी हैं और मकीनों के लिए बुनियादी ढांचे की फराहमी को यकीनी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तेलंगाना के नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि एससी और एसटी सब प्लान को नाफिज किया जाएगा। नागार्जुन सागर में कबाइलियों और कबाइली अवामी नुमाइंदों के लिए तरबियती कैंप का इनेकाद अमल में आया था। तरबियती कैंप के इख्तितामी सेशन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। अपने खिताब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने आदिवासी और कबाइलियों की भरपूर सताइश करते हुए कहा कि आदिवासी और कबाइली हीरो ही थे जिन्होंने आज़ादी की जद्दोजहद में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। उन्होंने कहा कि कबाइलियों के लिए लाए गए पीसा और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। इंदिरा मां की हुकूमत में जंगलाती वसाइल के तमाम हुकूक कबाइलियों को दिए जाएंगे। ITDS को बहाल किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ज़रूरी बजट मख्तस करते हुए बेरोजगारों को तरबियत फराहम की जाएंगी और रोजगार के मौके भी पैदा किए जाएंगे। निजामाबाद जिले के सरकारी अस्पताल के अमले के फराइज में गफलत बरतने और मरीजों की देखभाल के बजाय सालगिरह तकरीबात में शरीक होने का वाक़या सामने आया। रियासत तेलंगाना के कई सरकारी अस्पताल के अमले की जानिब से फराइज में गफलत बरतने और मरीजों की मुनासिब देखभाल न करने के वाक़यात सामने आ रहे हैं। ताज़ा तरीन वाक़या निजामाबाद जिले के सरकारी अस्पताल से सामने आया, जहां रेडियोलॉजी अमले और तिब्बी अमले ने अपने फराइज में गफलत बरती और मरीजों को छोड़कर अस्पताल सुपरिटेंडेंट की सालगिरह तकरीबात में हिस्सा लिया। ज़राए ने बताया कि अटेंडेंट मौजूद न होने से एक मरीज का शौहर मरीज को कंधे पर उठाकर 7वीं मंजिल पर ले गया। दौरे पड़ने पर अस्पताल लाई गई लक्ष्मी नामी खातून के इलाज में भी गफलत बरती गई। फराइज में कोताही करने और सालगिरह की तकरीबात में शिरकत पर मरीजों ने अमले पर बरहमी का इजहार किया, जबकि मरीजों के लवाहकीन ने अस्पताल के रूबरू एहतजाज दर्ज करवाया। फूड सेफ्टी हुकाम ने रंगारेड्डी के हिमांशी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर छापा मारते हुए 14 लाख रुपये से जायद के एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट जब्त कर लिए। हिमांशी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड पर फूड सेफ्टी हुकाम ने छापा मारते हुए हिफ्ज़ान सेहत की संगीन खिलाफ वर्जियों को बेनकाब किया। अहदेदारों ने पाया कि खाने पीने की अशिया को बेतरतीब तरीके से फर्श पर फेंका गया था। खाने पीने की अशिया पर कीड़े मकोड़े भी पाए गए। हुकाम ने बगैर लेबल वाले कोको पाउडर के थैले और कुछ लिक्विड्स भी जब्त किए हैं। अहदेदारों ने 14,29,600 रुपये मालियती खाने पीने की अशिया जब्त की हैं, जो कि एक्सपायर हो गई थी। हुकाम ने हिफ्ज़ान सेहत की खिलाफ वर्जियों पर हिमांशी बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड को एक नोटिस जारी किया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान
जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।